हैं? थर्ड में ये वेट करना है। हो रहा है। Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. आप में से कोई प्लीज ग्रुप पे बुक शेयर कर देगा? Can anyone do that? Am I audible? Yes. You want English book or Hindi book? Actually both. Okay, I'm doing. Just wait. Who's doing this? Rajiv ji, आप कर रहे हैं? Yeah, on a group, na? You are asking for any. Yeah. Will you be able to share it on the screen? Yeah, I can do that also. Oh, okay. I'm sharing the English. All right. I can't share the book because I don't get the access. I don't have. Let me check this. Hello, Dipanshi. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. How are you? It's All good right. to see you after such a long time. Same here. Same here. I've been longing for your sessions, yeah. Like nothing. You manifested it actually. Yes, yes, yes. That's wonderful to be together again. Yes, same here. Let me just get the book. So we have a lot of new members this time. Yeah. Hi. I can Good see. morning, Dipanjali ji.
Good morning. Good morning, Himmat. Wish you so many happy returns of this day. Thank you so much. Oh, it's your birthday. Yeah, Oh, good, good. You selected a very nice day for us. yeah, it Yeah, is. many happy returns of Congratulations. the Happy day. birthday. Thank you so much. Thank you all of Happy you. birthday, ma'am. Thank you. I got the book. ओके चलो कोई बात नहीं अब 5 मिनट की बात है या मुंह दुख के आ जाए Yes. Good morning, ma'am. Good morning, Maggie ji. How are you? Ma'am, I'm fine, ma'am. Ma'am, wish you a very happy birthday. Thank you so much. Thank you. Ma'am, it's like a Guru Purnima for us. Yes, very true. Thank you so much for your love. Just check if I can. You can see my screen. 1 minute. We still have 5 minutes to go. Okay. I'm gonna share it. होस्ट आपको मुझे राइट देने पड़ेंगे शेयरिंग के. एक मिनट. Good morning, everyone. Good morning. I made you co-host. Okay, Can you fine. share it now? Let me try. Yes, I can do that. So just check everyone if my screen is visible. Visible. Just reduce the Visible? size. I'll do. Okay, visible? Yeah. All right, wonderful. So we'll still have 3 minutes to go. Font is very small. I'll increase it. I'll increase it. Okay. And And little meanwhile, you volume can also. nominate yourself for reading. Anyone who wants to read. आज हम ना सिर्फ एक ही language में पढ़ पाएंगे because otherwise we'll go over time. Anyone who wants to read in either language, Hindi or English. हिंदी में पढ़ लो मैम. पर आप पढ़ेंगे हिंदी में? मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, पर हिंदी में पढ़ लो. हाँ, please let me know which language you want. आज जो है ना, किस language में करना है? Is everybody online? Do we need to start? Sorry. थोड़ा I'm जोश just, लाओ आवाज में. अब तो आप लोग उठ ही गए हो ना? I'm just checking like everybody's online or should I nominate for reading? You can nominate yourself. I wanted new people should also see if there is someone interested. No, rather I want somebody who have already done this book should read it. Okay, then I'll read it. Okay. Which one? So English? let me see. Like, what do you want? Hindi or English? आज का थोड़ा सा those who are new joinees थोड़ा सा lengthy जाएगा. It may exceed 1 hour because आज introduction है book की, and then it may go over time. So stay there to have good knowledge and introduction. And so welcome everyone. Good morning.
And today we are going to start our new journey. Let me introduce myself. I'm Dipanjali, who already know me, and there are new people जो जानते नहीं है मुझे. Even I don't know them. So welcome all of you. And मेरा नाम दीपांजलि है, and I'm an entrepreneur. I'm doing export business with the support of my family members. And I'm a mother of 2 young children, beautiful children, and I'm staying in Zirakpur. And there is a there is a reason behind starting this book, Magic Book. I don't know किसने इसके बारे में सुना है, जो new participants हैं. ये बुक थोड़ा सा मैं इससे पहले जाती हूँ. जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया या जो भी अचीवमेंट्स हुए या जिस तरह से मैंने अपने सपनों को पूरा किया, आई नेवर न्यू कि ये पूरे हो कैसे रहे हैं. आई ऑलवेज बिलीव कि हम भगवान से मांगते हैं और मिल जाता है. सबका यही बिलीव होता है. एंड हम भगवान से इतना ज्यादा जितनी ज्यादा हम प्रेयर करेंगे उतना जल्दी हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं. तो दैट इज गुड. दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक. बट ये बुक मुझे आज से 2020 February 2019 में आई गॉट टू नो अबाउट दिस बुक, मैजिक बुक. एंड उसके बाद से मुझे एक स्ट्रक्चर मिला एंड आई गॉट टू नो कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो कैसे रहे थे. कैसे बच्चे लाइफ में आए, जैसे बच्चे मुझे चाहिए थे, कैसे मेरा घर बना, कैसे मेरा बिजनेस जैसा बिजनेस मुझे चाहिए था, कैसे वो बिजनेस बना, कैसे उतना पैसा आ गया जितना पैसा चाहिए था, कैसे वो सब चीजें पूरी हो गई जो देयर वाज समवेयर इन द माइंड और बैक ऑफ द माइंड. वो रहती थी चीजें, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी मैं होनी चाहिए हूँ, ऐसे मेरे आसपास के सब लोग होने चाहिए. तो दिस बुक एक्चुअली गेव मी दैट स्ट्रक्चर. एंड वो आने के बाद अभी इट्स बीन नाउ 1.5 year जब से ये बुक मुझे मिली और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया. देन फिर पता नहीं कहाँ से एक चीज आई कि व्हाई नॉट टू शेयर विद अदर पीपल. एक चीज आपको मिल गई है, आपको एक सीक्रेट मिल गया है, ऐसे लाइफ चेंज हो सकती है. तो व्हाई नॉट टू शेयर विद अदर पीपल. हर किसी को कहीं ना कहीं एक लाइफ का एरिया है जहाँ पर लगता है कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, या ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे होने चाहिए. व्हाटएवर, आई मीन देयर इज नो लिमिट. आप अगर सोचो ना कि ड्रीम्स की कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है. आप में से अगर कोई वांट टू शेयर कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम है, कोई शायद चांद पे भी जाना चाहता है, तो नॉट इम्पॉसिबल. बिकॉज आप अगर देखोगे ना अपने आसपास भी नजर मारो, आपको शायद कोई भी एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो बिना सोच के दुनिया में आ गई. अगर ये बुक भी है, मैं अगर ये पेन की भी बात करूं, तो इस पेन को बनाने से पहले भी वो किसी की सोच होगी कि मुझे एक पेन बनाना है. वो पेन कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, यहाँ से सिल्वर होना चाहिए, कैसा उसका टिप होना चाहिए, कैसे उसके लुक्स होने चाहिए, क्या उस पर ब्रांड होना चाहिए. हर चीज एक सोच के साथ स्टार्ट होगी. कुछ भी आप कोई भी चीज अपने आसपास देख सकते हो. कोई चीज ऐसी नहीं है. हम भी आए तो हम भी दुनिया में किसी सोच के साथ आए. हमारे मम्मी पापा ने शादी की एंड देन दे हैड अ थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली, कि एक फैमिली होनी चाहिए, उसमें बच्चे होने चाहिए. देन दे हैड अ ड्रीम ऑफ हैविंग गर्ल, बेबी गर्ल या बेबी बॉय. एंड वो सब इट्स गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. ये चलता जा रहा है सब. तो हर चीज सोच से जुड़ी है. आज ना हम अपने ड्रीम्स को सेट करेंगे. आई नो आप सब लोगों का कहीं ना कोई ड्रीम है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए. बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने उसको जिंदा रखा हुआ है अपनी लाइफ में कि घर होना चाहिए. तो हम फिजिकली ऑफ कोर्स एफर्ट्स कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे कि अगर एक बड़ा घर, सपनों का घर बनाना है, तो भागो भागो भागो, ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा. आज हम लोग एक बहुत डिफरेंट दुनिया में जाने वाले हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस. ये बुक 28 दिन की प्रैक्टिस हमें देती है. 28 प्लस 2 दिन हम लोग इसमें डालते हैं. डे 0 होता है जस्ट टुडे इंट्रोडक्शन, एंड डे लास्ट डे होता है जिस दिन हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन. तो ये बुक हम लोगों को एक स्ट्रक्चर देगी. एंड डोंट वरी, आपको कोई फैंसी थिंग्स नहीं करनी है, कुछ आउट ऑफ द ट्रैक जाके नहीं करना है. आप बोलो कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो इतनी बिजी हूँ, घर के इतने काम है, या कोई बोलता है मैं तो ऑफिस जाता हूँ, इतने काम है, मैं कहाँ से प्रैक्टिस कर पाऊंगा. तो कुछ भी ऐसा नहीं है. जस्ट आपको जो जिंदगी जी रहे हो वैसे ही जीनी है. इट्स जस्ट थोड़े से उसमें ना चेंजेस लाने हैं, और वो भी सोच में और किसी भी चीज में. मैं आपको बता दूं, अगर सब लोग एक वर्ड जरूर यूज करते होंगे अपनी लाइफ में, विच इज थैंक यू. एंड विदाउट नोइंग भी थैंक यू निकल जाता है. किसी ने पानी का गिलास पिलाया हमें, किसी ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया, किसी ने हमें कोई चीज पकड़ा दी, तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं. तो आप सबको पता भी नहीं है ये थैंक यू वर्ड इतना मैजिकल है कि आपका
कैसा बड़े से बड़ा सपना, आप पैसा सोचो कितना, 10 करोड़ 50 करोड़ कितना सोच सकते हो, उसका 6 टाइम्स तक आपको लाकर दे सकता है। एंड इट्स अ सीक्रेट, इट्स एक्चुअली अ सीक्रेट। अगर आप ये बुक देखोगे ना, ये रोंडा बर्न ने लिखी है एंड उसने स्टार्ट किया था, सीक्रेट एक बुक है, सबसे पहले वो बुक आई थी एंड उसके बाद ये वाली बुक आनी शुरू हुई। तो इट्स एक्चुअली अ सीक्रेट जो कि पहले 2000 साल पहले इन्वेंट हुआ है। आई गिव यू द गाइडेंस, आपको कैसे इसके बारे में आज नॉलेज मिलेगी। एंड कुछ लोग थे, आप देखो आज भी अगर हम देखें तो देर इज ओनली 5% और लेस देन 5% पॉपुलेशन जो इतनी रिच है, इतनी रिच है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना पैसा। तो क्यों जा रहा है उनके पास, उन्हीं के पास क्यों जा रहा है? बाकी लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जैसे उन्होंने मेहनत की हम लोग भी कर रहे हैं। बट स्टिल देर इज समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ, कि वो चीज हमारी लाइफ में क्यों नहीं आ रही, क्यों अट्रैक्टिव। So today we gonna start our journey कि कैसे हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। एंड आई कैन बेट अपॉन आपके जो भी सपने, जो भी डिजायर्स हैं, कई लोगों को तो बुक खत्म होने से पहले ही वो चीजें नजर आने लग जाती है, बट हर किसी की लाइफ में उस एरिया को लेकर हलचल होगी, कुछ ना कुछ ऐसा शुरू होने लग जाएगा दैट यू विल सी यस, हाँ मेरा ये ड्रीम था एंड उसकी तरफ तो ये दरवाजे कैसे खुलने शुरू हो गए। यू विल नेवर अंडरस्टैंड, और घुसना भी मत उसके अंदर कि ये कैसे हुआ, सोचना भी मत, वो हो रहा है, स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ ये मेरी लाइफ में आ रहा है, बी ग्रेटफुल की जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। बट अगर फिर भी एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं कि जिसकी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आते हैं, देन आई शुड से कि कुछ ना कुछ है जो फिर आपने कहीं गड़बड़ करी है, कहीं मिसिंग करी है प्रैक्टिसेस में। हम कभी अभी नवरात्रे होते हैं, कुछ भी होते हैं, हम लोग कितनी डेडिकेशन से कहते हैं 9 दिन पूजा करनी ही करनी है, मंदिर जाना ही जाना है, कितने अच्छे से रेडी होके, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि सुस्ती के साथ आंखें मलते हुए पूजा करते हैं या सोचते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं दोपहर को 12 बजे भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो चीज भी आप डेडिकेशन से करते हो वो आपको 100% रिजल्ट देती है। सिमिलरली ये बुक की प्रैक्टिसेस के लिए भी आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जो भी इसकी प्रैक्टिसेस है मैं वो करूंगी या करूंगा, जैसे ये बुक बोलती है उस तरह से हम प्रैक्टिस को करूंगा। एंड आई कैन मेक यू श्योर कि जिस दिन हम कंक्लूड करेंगे सेशन, आई होप कि आप सभी आकर बताएं कि हाँ हर एरिया जिंदगी का काम करने लग गया है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट फिनेंसेस, बी इट बिजनेस, बी इट कोई मटेरियलिस्टिक थिंग है, आपकी हेल्थ है। हेल्थ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं लोगों के, इतने ड्रास्टिक जो शायद वो सालों से दवाइयां भी खा रहे होते हैं तो वो चेंजेस नहीं आते। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मैजिक बुक। एंड आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बिकॉज इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लंबी है, उसके बाद बाकी 28 दिन रोज का एक एक चैप्टर हम लोग रीड करेंगे एंड वो चैप्टर आई थिंक 40-45 मिनट्स में हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस सेशन एंड हु इज गोइंग टू रीड। आप पहले सब बता दो प्लीज, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि हिंदी या इंग्लिश में आपको करना है आज का रीडिंग। अदरवाइज मैं बता दूं बाकी जो दिन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, हम हिंदी में भी रीड करेंगे एंड इंग्लिश में भी रीड करेंगे। एंड जहां पर किसी को कोई अटक आती है, किसी को लगता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वर्ड का मीनिंग, प्लीज वहां पर आप सेशन के बाद मुझसे भी पूछ सकते हैं एंड या फिर आप वो कह रहे हिंदी या इंग्लिश लिखियो, हिंदी। सॉरी मेरा म्यूट किया है तुम? यस ओके आई गॉट, हम लोग ना विल गो विद द मैच्योरिटी। आई गॉट 2 फॉर हिंदी 2 फॉर इंग्लिश। ओके व्हाट टू डू, अनदर हिंदी Leave it in there. Leave it in there. मेरे को Okay, let's do one thing. Let's मेरी start. आवाज तो नहीं आ रही? Everyone, please, I request to keep yourself on mute, please. Okay, we'll start in Hindi and बीच बीच पे ना I'll add on कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो गूढ़ हिंदी आ जाएगी ना I'll explain in English. तो the idea is to have the understanding, सबको हमें समझ आ सके. Okay, so who's going to read in Hindi? I'll read it. Who? Take your name. Deepika. Is it visible to you, Deepika? Dipanjali, no, it's not visible. I have shared the screen. It is visible, but font is Switch very to screen share. Yeah, now it's okay.
Okay. Otherwise, you also have books with you. मैंने e-book हम लोगों ने share किया आपके साथ. एक्चुअली मैंने ना इंग्लिश वाला डाउनलोड किया था, हिंदी वाला लेट मी डाउनलोड. You can download it. It will take a second. मैकी जी आपने share कर दिया ना book दोबारा से? हाँ जी, आप ना जूम भी कर सकते हैं इसमें, जो स्क्रीन शेयर होगी ना उस पर जूम कर लो. ऐसे? मतलब आप जैसे हम फोटो को जूम करते हैं वैसे ही आप स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं. या मतलब हाँ, आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो. हाँ, मोबाइल पे आप जूम कर सकते हैं तो उसको इजी हो जाएगा. Okay. So let's start and thank you so much everyone and let's be thankful कि हम लोग ये सेशन कर पा रहे हैं. हम सबके पास वो उतने गैजेट्स हैं रिक्वायर्ड, उतना इंटरनेट एक्सेस है that we all can connect. मैं एक और चीज बता दूं कि ये बुक ना हम अकेले भी कर सकते हैं, हम सब अपने अपने घर में कर सकते हैं. बुक का एक्सेस आपको मिल गया है, सबके पास है. यू कैन रीड, यू कैन प्रैक्टिस. बट कोई भी चीज हम मास में ग्रुप में क्यों करते हैं? आप देखो कोई भी फाइट होती है तो सब अलग अलग लड़ने की बजाय, अगर कोई अपने देश के लिए लड़ता है तो अलग अलग लड़ने की बजाय ग्रुप में लड़ते हैं. एंड यू फिर क्या इम्पैक्ट होते हैं जब हम ग्रुप में कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं. तो सिमिलरली जब हम यहाँ पर सब साथ में इकट्ठा होकर मास लेवल पे कोई भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन यानी कोई संकल्प लेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो एकदम फास्ट हो जाती है. So let's be thankful to each one and to ourselves as well. And let's start. Deepika, please start with me. Okay, so you want me to start from the first page, Abha, right? It's just you have to say Jadoo, and the author is Rhonda Byrne. Okay. So I'll scroll. Okay. So the book is Jadoo, and it's written by Rhonda Byrne. Yeah. And scroll. okay, let's start with Abha Samarpan. and Samarpan. Okay, Samarpan. काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे. यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ. ऑफ कोर्स अपने लिए भी. एक सेकंड दीपिका, यू हैव टू वेट इन बिटवीन. मैं आपको बीच बीच में रोकूंगी. तो आप इस राइटर का समर्पण देखिए. आज जो हम बुक या प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस है. प्लीज जहां से भी हम म्यूट कर लें अपने आप को. ओके, जहां से भी हम आज शुरू करने जा रहे हैं, तो राइटर ने जब ये बुक लिखी तो उसने क्या समर्पण किया? काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे. यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ. So that's so beautiful and let's be thankful to this author. Yes, please. जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्क पर शुरू होता है. तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है. फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो आपकी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में. एक सेकंड दीपिका, ये आपके एंड पे है डिस्टरबेंस? नो. युवराज जी का माइक ओपन है, आप प्लीज बंद कर दें. हाँ, प्लीज आप इसको म्यूट कर लीजिए. होस्ट प्लीज आप कंट्रोल करें. ओके, प्लीज कंटिन्यू. जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है. निम्न लोग उस सृजन के व्यापार दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है. धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया. जॉश गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं. बियॉन्ड वंडर्स की संपादक सिंडी ब्लैक को अपनी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी. निक जॉर्ज को अपनी सूचनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद. ये बहुत टफ हिंदी है. आई थिंक यू आर नॉट कंफर्टेबल.
I mean, I am comfortable reading, but I am not comfortable understanding. But see, we have to read it because जो हमें life changing experience देने जा रहे हैं, अगर हम उनको gratitude नहीं करेंगे, thank you नहीं करेंगे ना. No, I understood, but I am not getting the words like Bhavishya Okay. Drishti, Okay. Sampadan. Then better not to read it. Someone else who wants to read it, or I'll read it from tomorrow. You can nominate yourself. From tomorrow, language बहुत simple होने वाली है. Okay. So Deepika, you can read tomorrow. All right. All right. So let me read it. धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया. जॉश गोल्ड को भी जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं. प्लीज अंडरस्टैंड, जब इन्होंने बोला है वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं और उसमें विज्ञान भी आ गया, धार्मिक अवधारणाएं भी आ गई, तो ये जो बुक बनी है ये पूरा रिसर्च हुआ है. जो लोग साइंस को मानते हैं वो साइंस के थ्रू इस वर्ड में एंटर कर सकते हैं, जो रिलीजियस माइंड के साथ यहाँ पर आए हैं वो रिलीजियस माइंड के साथ कर सकते हैं. तो जैसी आपकी सोच है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. एंड ये बुक पूरी रिसर्च बेस्ड है, हर रिसर्च होकर हर साइड से जहां मतलब जो चीज आपको आपके सपनों के पास लेकर जा सकती है वो चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पे उन्होंने दी है. बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी. निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख प्रेस के जरिए जादू बिखेरा. पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैम्स होर और कार्ला थॉर्टन का धन्यवाद. द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है. खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एंड्रिया कीर को जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफल किलप्रिटिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई. इसके अलावा सीक्रेट टीम की बाकी सदस्यों को धन्यवाद जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया. इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क ओकॉनर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापो, कोरी, जोना सिंह, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली. धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूटर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, विजने फैन, जेम्स पार्विन, किम्बरली गोल्डस्टिन और इसोल्ड सॉर को ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ. धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोस को, उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवारों को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए. और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें. सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान. तो जस्ट सी, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ बुक है, बट इस बुक के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत है, कितने सारे लोगों की मेहनत है. अभी तो उसने ऑथर ने सिर्फ नाम गिनवाए हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि और कितने सोर्सेज होंगे जिन्होंने इस बुक को हमारी लाइफ में लाने के लिए मेहनत की हो. तो लेट्स बी थैंकफुल. एंड ये इंडेक्स है, ये चैप्टर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे. देयर आर 28 चैप्टर्स इन ऑल टुगेदर एंड वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. तो ये हमें बुक की और अच्छा इंसाइट दे रहा है. क्या आप जादू में यकीन करते हैं? दीपिका, इफ यू वांट यू कैन रीड नाउ. अब वो मुश्किल वर्ड्स नहीं आएंगे. Okay. Can you please share the screen because okay, I got it. Okay. क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें ये कभी नहीं मिलता. तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स, आप पहले अपने आप से सवाल कर लो. एक बचपन था जहां हम बहुत सारे जादू में बिलीव करते थे. स्टार्स को देख के बड़े खुश होते थे,
एरोप्लेन जाता था तो हम सोचते थे कैसे जा रहा है, ये तो जादू है, हवा में कैसे उड़ रहा है। कभी रेनबो देख लिया तो वो जादू हो जाता था। हम लोग एक वो कैंडी फ्लॉस खाते थे, बुड्ढी माई के बाल बोलते थे उसको, हम सोचते थे ये कैसे हो गया। तो वो सब था क्योंकि हम लोगों को बिलीव था। आज धीरे धीरे हम अडल्ट होते गए, इतनी सारी टेंशन लाइफ में आ गई, आज हमें लगता है जादू तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं जो देख रही हूँ वही लाइफ है, वो जादू, इसके अलावा कोई जादू नहीं है। तो यू हैव टू बिलीव इन मैजिक, एंड आप देखना धीरे धीरे कैसे मैजिक होता जाएगा लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज कंटिन्यू। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दान टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, अपने सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमें कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्त पहलू झूठ है। यानी कि जीवन जो का हम बचपन में बिलीव करते थे वो सारी बातें सच है। आज एज एन अडल्ट जो हमने अपने इतने बिलीव्स बनाए हुए हैं ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता, मैं तो बड़ी गाड़ी खरीद ही नहीं सकता, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। एक्चुअली वो थॉट आपकी लाइफ बना रहे हैं। अगर आप बिलीव करने लग जाओ कि ये सब चीजें बहुत ईजी है लाइफ में लाना, उतनी ही इजीली आपकी लाइफ में सब चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। बिलीव यू। प्लीज कंटिन्यू। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था। दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा था, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए यह परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। सटीकता यानी आप प्रिसाइजली एक कोई ऐसा सोर्स बन जाएगा। आप मान लो आज एक जॉब में हो, आपको पता है आपकी ये फिक्स इनकम है, बट अगर आपने ये बुक स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस करनी, और आपको पता है कि मेरा एक सपना है कि मेरी जो इनकम होनी चाहिए, मंथली इनकम होनी चाहिए, आज मेरी 1 लाख है, मेरी मंथली इनकम 2 लाख या 3 लाख होनी चाहिए।
तो जब आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जो इसकी टेक्निक से आगे आगे जो भी इसके टिप्स आपको मिलेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सोर्सेज ओपन हो जाएंगे कि आपकी मंथली इनकम आपको 3 लाख चाहिए ना, तो वो 3 लाख हो जाएगी एंड आपको पता नहीं चलेगा कि वो हुआ कैसे। मैंने तो कोई किसी को कहा ही नहीं कि मुझे दूसरी जॉब दिला दो, या मैंने तो कोई साइड बाय बिजनेस भी प्लान नहीं किया था। यू विल नेवर गेट टू नो, एंड उस चीज में जाना भी नहीं है। जो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। वो सोर्सेज ऐसे ऐसे ओपन हो जाएंगे कि आप कई बार तो कुछ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, वो पागल मतलब इतने परेशान हो जाते हैं, वो परेशान होकर जो चीज उनको मिल भी रही होती है ना, उसको छोड़ के वो परेशानी वाली दुनिया में चले जाते हैं कि हुआ कैसे, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैंने बोला मुझे ये चीज चाहिए और इतनी जल्दी मिल भी गई। तो इसलिए हम लोग बहुत कामली इस बुक को प्रैक्टिस करेंगे। किसी की भी लाइफ में कोई चेंजेस आने शुरू होंगे तो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करें। बी हैप्पी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। आपकी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। जी, 2000 साल पहले, अब तो शायद ज्यादा हो गए होंगे, जब ये बुक लिखी है तो 2000 साल पहले उन्हें पता चला था कि ये लोग इसको, जो राजा महाराजा होते थे ना, या जो लीडर्स होते थे, वो लोग इस जादू को यूज करते थे। मैं आपको बताती हूँ, आगे इस बुक में भी आपको पता चलेगा। आप सब लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, जो आज तक का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है। उसने भी इस जादू को अपनी लाइफ में यूज किया है, वो सारे टिप्स यूज किए हैं। तो आगे आगे इस बुक में आप पढ़ेंगे कि उसने कैसे यूज किया है। तो जब एक साइंटिस्ट कर सकता है, आप देखो साइंस क्या कहती है कि किसी भी हम लोगों को ना और चीजों में विश्वास नहीं करने देती। उनका हर चीज का बेस साइंस होता है कि साइंस में ये चीज ऐसे होती है तो इसलिए ये ऐसे हो रही है। वो किसी सूर्य ग्रहण को नहीं मानते हैं, किसी और रिलीजियस हैपनिंग को नहीं मानते हैं। दे पुट देयर साइंटिफिक लॉजिक्स इनटू इट। तो इसी तरह अभी आइंस्टाइन ने भी, और भी इतने सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसको अपनी लाइफ में यूज किया और इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स उनको मिले। तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। यस दीपिका, कंटिन्यू। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टमेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मथ्यू से लिया गया एक है। सेकंड, ये वाला हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे प्लीज। वेट लेट मी शेयर। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर किसी को भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज अपनी डिक्शनरी खोल लें और वहां पर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, बट डोंट स्किप इट। विजिबल है स्क्रीन आपको? Yes, ma'am. हाँ जी। Yeah, please start. A great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Okay, one moment. इसको हिंदी में लिखा गया है, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। सॉरी, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। प्लीज दोबारा सुनिए। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये इतना कंफ्यूजिंग फ्रेज है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है मेरे पास और मुझे क्या ज्यादा मिलेगा और मैं कैसे समृद्ध हो जाऊंगी, या जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। तो ये एक सीक्रेट था जो डिस्कवर हुआ था 2000 साल पहले। ये पहेली थी एक्चुअली, उसमें ना कुछ वर्ड्स को फिट करना था जिससे कि इसका मतलब निकाला जा सके।
तो एक्सपर्ट्स ने इसका कैसे मतलब निकाला? प्लीज कंटिन्यू. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word. And the hidden word is gratitude. Yeah, please read it. Please read it slowly. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yeah. By One the moment, मैं इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ. वो पहेली कैसे सॉल्व हुई? हमें लग रहा था शायद जो अमीर है अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा. नहीं, वो पहेली थी जिसके भी पास कृतज्ञता है. कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, जो हम थैंक यू की भावना, किसी को धन्यवाद करने की भावना कितनी डीप हो सकती है, उसको कृतज्ञता कहते हैं. जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा. आई होप इट मेक्स सेंस. प्लीज कंटिन्यू. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made clear, crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more, and you will have an abundance. यस, तो इसका मतलब क्या है? एक सेकंड. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. Abundance का मतलब होता है भरपूर. जो भी आपको जिंदगी में चाहिए वो भर भर के मिलता है आपको. बट उसके लिए आपको करना क्या है? आपको ग्रेटफुल होना है, आपको कृतज्ञ होना है कि जो चीज भी आपकी लाइफ में है. एंड वो इतने सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होने लग जाते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस यानी भरपूरता आनी शुरू हो जाती है. पैसे की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, बिजनेस की, करियर की या स्टडीज, कोई भी एरिया जो आपकी लाइफ में जो आप काम करना चाहते हो जिसको. यस प्लीज. From the Quran, the promise of gratitude. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, "If you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." नहीं, आपने पूरा पढ़ा. एंड रिमेंबर व्हेन गॉड प्रोक्लेम. एक second. Mobile से देखना पड़ेगा. And remember when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." कुरान यानी कि सबको पता है ये स्पिरिचुअल बुक है. हम यहाँ किसी एक रिलीजन को के बारे में बायस नहीं हो रहे हैं. बट हर बुक में, हमारी गीता में, कुरान में या बाइबल में भी आप अगर देखेंगे ना, गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो उसमें भी देखेंगे जो सिखिज्म में रीड करते हैं, हर एक में सिर्फ यही चीज एक लिखी है कि याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो, अनग्रेटफुल हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा. Continue. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, "I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down
something he or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess, or my marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. But if Yes. you अभी तक अगर आपने देखा होगा ना हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, जो भी हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ है, वो सब नजर आ रहा है. तो अगर हम कभी भी अपने ड्रीम्स की बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मुझे तो अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, मेरे पास तो इनफ पैसा ही नहीं है, मेरा तो हस्बैंड या वाइफ ही बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मेरी केयर ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता, इतने बिल आते जा रहे हैं, मैं कहाँ से बिलों को चुकाऊं, मुझे तो बीमारियां इतनी लगी हुई हैं, एक मुसीबत जाती नहीं और 4 मुसीबत नहीं आ जाती है, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी माँ बाप के साथ बनती नहीं है, मेरे तो बच्चों ने मेरी नाक में दम किया हुआ है, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, मेरी तो लाइफ हेल हुई पड़ी है. आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर शायद जिन्होंने बुक कर ली है, दे हैव अंडरस्टूड कि हमारी लाइफ सिर्फ इन्हीं चीजों से घिरी हुई है. वी आर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स. कि प्रॉब्लम है क्या, मेरे तो सास ससुर बहुत खराब है, मेरी तो बहू खराब है, मेरे तो भाई बहन बेकार है, सिर्फ ये चीजें चल रही हैं. वी नेवर फोकस कि होना क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या. तो इस बुक के थ्रू हम लोग फोकस करेंगे कि हमें चाहिए क्या, एंड वो चीजें कैसे कैसे एक एक करके आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी. प्लीज कंटिन्यू. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude. The law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is a universal law. You will have heard saying 1 like, सेकेंड. सबको मैग्नेट पता है, चुंबक. दीपिका, हाँ मैग्नेट. जी, yes, मैग्नेट कैसे आयरन वाली चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, attract. और जितना ज्यादा वो मतलब कितनी वो ज्यादा, आई डोंट नो, कि जितना ज्यादा उसका डेंसिटी या स्ट्रेंथ बड़ी होगी उतनी ज्यादा हैवी चीजों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है. बहुत बहुत बड़ी बड़ी अगर फैक्ट्रीज में कहीं जाकर देखो जहाँ बहुत बहुत बड़ा मतलब आयरन का काम होता है, तो वो मैग्नेट का जो मैकेनिज्म है वो लोग यूज करते हैं. तो सिमिलरली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, प्लीज ध्यान से सुनना, विच इज एज ट्रू. जैसे हम लोग ग्रेविटी जानते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में, क्या होगा, कोई भी चीज अगर हम ऐसे नीचे डालेंगे तो वो नीचे ही जाएगी, कोई पॉइंट ही नहीं है कि वो ऊपर चली जाए, अनलेस आप मून पे नहीं हो. धरती पे तो ग्रेविटी काम करती है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली एक और यूनिवर्सल लॉ है विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मतलब उसका मतलब बहुत सिंपल है, जो आप सोचते हो वैसी आपकी लाइफ होती है, वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, पहले उन्होंने लिखा आई डोंट लाइक माई जॉब, मुझे तो अपनी जॉब पसंद ही नहीं है, जबकि दूसरी में उसने क्या लिखा, उसका ऑपोजिट, आई लव माई जॉब. फिर लिखा आई हैवंट गॉट इनफ मनी, बट दूसरे में क्या लिखा, मे बी कहीं पर उन्होंने पैसे के I बारे में, got the biggest tax refund टैक्स ever. रिफंड एवर. इट इज जस्ट चीजें वही हैं. अभी भी आप अपनी जॉब को प्यार नहीं करते हो, बट स्टार्ट लुकिंग कि इस जॉब में अच्छा क्या है. आपको अगर 50,000 सैलरी नहीं दे रही है, 40 तो दे रही है, आप अपना घर तो चला पा रहे हो, उसकी वजह से खा पा रहे हो, अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हो. यस ऑफ कोर्स आपका ड्रीम है, हर किसी को अपग्रेड करना है अपने आप को, बट एटलीस्ट जो आपके पास है उससे प्यार करना शुरू करो. हम जितना बोलते हैं ना नहीं नहीं नहीं, उतनी ही वाइब्रेशंस, ये हम धीरे धीरे इसको समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डीप में. जो आप बोलोगे, अगर किसी ने वो गीता का भी एक फ्रेज सुना हो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही हमारी दुनिया बनने लग जाती है. तो गीता तो आज की नहीं है, अगर किसी को इस पे विश्वास नहीं होता इस बुक पे, तो गीता पे वो विश्वास कर सकते हैं. कृष्ण जी ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, हमारी दुनिया सेम वैसी बनने लग जाती है, सूनर और लेटर. तो इस बुक के थ्रू हम लोग पहले रियलाइजेशंस करेंगे कि क्या क्या, अभी आपने जब 28 चैप्टर भी देखे ना, तो उसमें पहले 10 चैप्टर हमारी रियलाइजेशन पे काम होगा, कि हमें पहले रियलाइज करना है कि है क्या क्या, उनको फील करना है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड. अगले 10 में फिर हम जो अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं, पहले हमने पास्ट को ग्रेटिट्यूड किया, फिर अगले 10 चैप्टर में आप अपने प्रेजेंट में आ जाएंगे, एंड नेक्स्ट 8 चैप्टर में हम लोग अपने फ्यूचर को बनाएंगे. सिमिलरली जैसे बच्चा पहले वो क्रॉलिंग करता है, रिड़ता है, फिर चलना सीखता है, और एक दिन वो भागने लग जाता है. तो इसी तरह से हम इस बुक के थ्रू काम करेंगे अपने सपनों के ऊपर. प्लीज कंटिन्यू दीपिका. You will have heard saying like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law.
And they are also describing the principle of the universe that the greatest scientist, Sir Isaac Newton, discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says, every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude, Newton's law, it says, every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yes, now it depends on the depth of your gratitude. हम कितना थैंक्स कर पाएंगे. डोंट वरी, किसी को लग रहा हो कि थैंक यू तो मैं रोज बोलती हूँ, ये क्या नया आ गया. इस बुक में बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस है जिनके थ्रू हम लोग अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को, फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे, एंड यू विल सी कि कैसे हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में. यस. The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recording of humankind. The power of gratitude was preached and practiced. And from there was... I'll read in Hindi. ये वाला मैं पढ़ती हूँ. Okay. कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है. यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही. कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है. मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी. बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है. लाओ त्सु ने कहा था कि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा. कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं. सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था. कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और ज़ूलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चेरोकी के ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है. तो लुक एट दिस कि कब से ये ग्रैटिट्यूड की प्रथा चलती आ रही है. जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें. यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है. अभी भी आप जहां पर बैठे हैं ना, उसके आसपास भी अगर आप देखोगे, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, आपके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी गैजेट है जिसके ऊपर ये सेशन हो रहा है ना, तो वी आर ग्रेटफुल, वी आर ब्लेस्ड. बहुत सारे, कितने लोग हैं, शायद हम लोग 20-25 लोग हैं सेशन में, कितने लोग हैं जिनको शायद ये सीक्रेट मिल भी नहीं रहा है, वो आ भी नहीं पा रहे हैं. और हो सकता है कोई लोग मजबूरी के कारण नहीं आ पा रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है या इनफ इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, बट वी आर ब्लेस्ड. तो आप यहीं से अपना थैंक यू स्टार्ट कर सकते हैं. आपके पास एक गिलास पीने के लिए भी पानी है तो बी ग्रेटफुल. अगर किसी ने मोना मूवी देखी हो ना, वो कार्टून टाइप में है, तो उसमें वो मूवी भी आप देख सकते हो. उसमें ग्रैटिट्यूड बताया गया कि कैसे हम लोग इस ग्रैटिट्यूड को फील कर सकते हैं. हर चीज के लिए वो लोग उठते बैठते खाते पीते हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं. इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया. गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर, किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस, डेकांट, लिंकन, युग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां. अभी ये तो पुराने लोग हैं. मैं अगर आज भी आपको बता दूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही इतने लोग हैं, क्योंकि अब नॉर्मल तो आप जो कॉमन मैन है उसके बारे में क्या बताऊं. अगर अब मैं बात करूं, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, उसके अलावा रणवीर सिंह है, एंड एक राजकुमार है, एक न्यू एक्टर अभी जो आया पिछले 1-2 सालों से. सब लोग वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं. लेटर ऑन आई विल शो यू दी वीडियोस कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया चीजों को, कि एक बिल्कुल ग्राउंड जीरो से निकल कर और बॉलीवुड में अपना इतना नाम बनाना.
अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को अपने काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद किया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वह भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इससे बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। हम भी यही करते हैं। सच्चाई यह है कि जब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी, सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्जे में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय ही नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने का वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो अब सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुई थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरे स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी कि जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम
आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। यही सब हमारी भी कहानी है। टेंशन टेंशन टेंशन, बट हमें कैसे अपने जीवन में जादू को लाना है वो देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देती है और आपको इतनी खुशी महसूस होती है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे कि जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था और आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। ये सबके लिए है प्लीज। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। तो यू नो इट बेटर, कौन सा एरिया आपका अभी इस लाइफ में इस टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वहां आपने जरूर ग्रैटिट्यूड का नोइंगली और अननोइंगली इस्तेमाल किया होगा और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते थे। कृतज्ञता के बारे में देखें। नाउ जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, जिस एरिया में जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। हल्के में लेना मतलब फॉर ग्रांटेड कि पानी के बारे में क्या सोचना है, तो मुझे मिलना ही था, आई डिजर्व इट, इसमें थैंक यू करने वाली क्या बात है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक।
इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। नाउ व्हाट इज द मैजिक फॉर्मूला? ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी पूंजी है। ज्ञान एक खजाना मतलब जो ट्रेजर है वो तो नॉलेज है जो ये बुक हमें दे रही है, बट जो इसकी प्रैक्टिसेस है वो एक्चुअली उस खजाने के ताले की चाबी है, जो हम हर रोज करेंगे ना 28 दिन तक जो प्रैक्टिसेस हम करेंगे, वो हमारा ये जो जितना भी ज्ञान हमारे दिमाग में जा रहा है, तो जब इस खजाने को हमें अपनी लाइफ में चाहिए ना, ये खजाना, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो उस दरवाजे को खोलने के लिए एक ताला लगा हुआ, उसको खोलने के लिए जो चाबी है वो इन प्रैक्टिस से हम लोग बनाएंगे। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहते हैं वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। नाउ व्हाट इज द मैजिक फॉर्मूला? नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें तो रियलाइज करें कि आप किस किस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ये मोबाइल है तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ये मोबाइल है। आई हैव बीन चूजन, मुझे ये मोबाइल मिला, मैं कितनी लकी हूँ। एंड सोच सकती हूँ, मैं किसी को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद खरीदा होगा तो मैं खुद को ही बोल सकती हूँ। नंबर 2, आप जानबूझकर डेलिबरेटली जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। फीलिंग नहीं आ रही तो जानबूझकर ढूंढो कि किस किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, फीलिंग भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो अब जो हमें मिलना है ना लाइफ में, हमारे सपने, तो इट डजंट डिपेंड कि आप उसको जानबूझकर बोल रहे हो या सोच समझ के बोल रहे हो। आप थैंक यू बोल रहे हो मोर देन एनीथिंग। और नहीं भी बोला जाता तो मेरे एक गुरु ने मुझे एक फॉर्मूला दिया था कि फेक इट टिल यू मेक इट। जानबूझ के झूठा करो, थैंक यू नहीं फीलिंग आ रही, थैंक यू बोलो, थैंक यू मन में बोलो, थैंक यू बोलते रहो टिल द टाइम यू मेक इट रियल। तो यू कैन अप्लाई दैट। मैंने ऐसे ही किया था। मुझे तो पहले लगता था थैंक यू क्या बोलना है, इतना किसको बोलना है थैंक यू। तो जब से फिर मैंने वो फॉर्मूला अपनाया कि फेक करते हैं, चलो थैंक यू वैसे ही फेक कर देते हैं, एंड धीरे धीरे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कृतज्ञता एक भावना है कि इस कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का एक नियम है, एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। तो इसका भी मैं मतलब आपको बता दूं, जितना आप ग्रेटफुल होंगे किसी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आज अगर किसी को ना किसी के पास एक बेटी है और उसको बेटा चाहिए अपनी लाइफ में, तो पहले बेटी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ एंड वो बेटा भी आपकी लाइफ में आ जाए। सिंपल फॉर्मूला है कि जो मेरे पास है मैं उसके लिए पहले थैंकफुल हो जाऊं, भगवान को, जिसको भी मैं मानती हूँ उनका धन्यवाद करूं कि वाह मुझे ये बच्चा मिला, मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि बेटी मेरी लाइफ में आई, इसने मुझे माँ बनाया। तो फिर जब मुझे बेटा चाहिए ना तो वो भी अपने आप मेरी लाइफ में आ जाए। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, मतलब जो हम फिजिकल एफर्ट्स इतने कर रहे हैं ना पैसा कमाने के लिए, उससे बहुत 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 कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड लाइफ चेंज हो जाएगी।
जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आई थिंक इट डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। सबको समझ में आ रहा होगा। अब इस बुक के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनको अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप देखो, अगर एक स्ट्रगल करने वाला इंसान है ना, मेहनत करने वाला, रिक्शे वाले को ले लो तो वो रिक्शा चलाई जा रहा है, मेहनत करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। बट अगर एक अमीर इंसान की तरफ देखो, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को देखो, नामी हस्तियों को देखो, तो बैठे हुए आराम से सिर्फ फोन पे बात करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक वो जो गोल्डन थ्रेड है वो पकड़ के हम लोग भी उस रास्ते पे चलेंगे। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो भी मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा। आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। तो डोंट वरी, जिसको लग रहा है कि मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आप खुद चेंजेस देखेंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति यानी नेगेटिविटी या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आपको आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी चाहते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं
और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देते हैं। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। का मतलब ये है कि जैसे हम कोई वो भी करते हैं ना, मंदिर जाते हैं और सोचते हैं कि हमें 1.25 महीना जाना है या 7 दिन तक जाना है या 16 सोमवार के व्रत रखने हैं, तो एक भी छूट जाता है तो हमारी पिछली प्रैक्टिस सारी नल एंड वॉइड हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप एक स्पीड को पकड़ना शुरू करेंगे, आपको फीलिंग्स आएंगी, जादू आने लग जाएंगे। मान लो 10 दिन आपने किया और 11वां दिन स्किप हो गया, तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, या फिर हम लोग यूट्यूब पे भी पोस्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, वहां से भी आप निकाल के कर सकते हैं। तो बट मेक श्योर कि नागा ना हो, बीच में छोड़ो नहीं एक भी दिन की प्रैक्टिस। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा क्योंकि वह सुबह आंखें खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यासों को पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों को सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करते तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन की उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर करना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लगेगा। अब 28 दिन बाद क्या होगा जब हम इस प्रैक्टिस को कर लेंगे। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से ये खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, तो या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग जैसे जैसे हम रीड करेंगे। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशेष क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। हम कहते हैं ना किसी चीज की अति हो जाती है, तो ये ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है इसकी कभी अति नहीं होती। जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? वह मुश्किल, यानी कि यस बन सकता है। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। अब नाउ वी आर कमिंग टू ड्रीम्स। आपके सपने क्या हैं? ये हर कोई अपने अपने लाइफ में झांक कर देख सकता है। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब
जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये वैसा ही है, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। तो एनीवेज आज का हमारा होमवर्क क्या है, सबसे पहले आज हम अपने ड्रीम सेट करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता लाइफ में चाहिए क्या, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पर काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, आपके ड्रीम 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। आपको आज उनकी लिस्ट तैयार करनी है एंड फोर्स योर सेल्फ टू डू इट। बहुत सारे लोग हैं जिनसे होगा ही नहीं। एंड एक चीज ध्यान रखनी है, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके बारे में वहां पर नहीं लिखना है। आई डोंट वांट माइग्रेन, कि मेरे सर में दर्द होता है, आई डोंट वांट दैट, वो नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं चाहिए प्लीज थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाना एंड मेक अ लिस्ट, चाहे अपने मोबाइल में बना लो, कंप्यूटर में, या फिर कहीं लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अपने ड्रीम्स की एक लिस्ट बनानी है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ड्रीम आपकी प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी लिखें। यहाँ पर कोई प्लीज अपने आप को म्यूट करके अपना एक ड्रीम शेयर करो सो दैट मैं उसको अच्छे से बता सकूं कि लिखना कैसे। एनीवन न्यू, जो जिन्होंने पहले बुक किया वो नहीं, कोई भी एक नया कैंडिडेट, एनीवन? यस, Okay, I'll say. I want everything to be smooth. दीपिका, ओके, या दीपिका? I want everything to be smooth. नहीं, दैट कैन नॉट बी अ ड्रीम। उसमें और प्रिसाइज हो जाओ आप, आपके लिए स्मूथ का मतलब क्या है? My personal as well as professional life. और डीप चले जाओ। Actually, I have read The Secret and I follow that very strongly. So, वंडरफुल। what should I say? I want Angad to learn Hindi. अंगद इज योर सन, राइट? Yeah. ठीक है, तो आपका ये ड्रीम है ना, आपका ड्रीम बहुत अच्छा है, वंडरफुल, बट इसको आप कभी भी आई वांट की लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि हम जब किसी चीज को, जो भी हम चाहते हैं, हमने सोचा तो दैट मीन्स वो एग्जिस्ट हो सकती है। तो अंगद हिंदी बहुत इजीली लर्न कर सकता है। यू हैव टू मेक दैट, यू हैव टू डेवलप दैट बिलीफ। तो जब आप इस ड्रीम को लिखोगे ना, आपको कैसा लगेगा जब अंगद हिंदी सीख जाएगा? I'll be like, I'm more than happy. More than happy. So you can write, I am very happy that Angad is maybe speaking or writing, whatever you want. I am very happy that Angad is speaking Hindi. Very simple. And इसको और प्रिसाइज करना तो कर लो। आपको कुछ वर्ड्स यू आर लुकिंग फॉर कि ये वर्ड्स अंगद बोले हिंदी में, या उसमें उसके क्लास में हिंदी में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो बट उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। हिंदी में बात करूं तो आप लिखेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ या मैं धन्यवाद करती हूँ कि अंगद हिंदी जानता है, वो हिंदी लिख रहा है, उसके हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे करके आपने अपने ड्रीम को लिखना है। आई होप आई मेड इट क्लियर। Yeah. तो शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, आपको वर्तमान में लिखना है और ऐसे लिखना है कि वो हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, जो आप सोचते हो उसकी एग्जिस्टेंस है, कहीं ना कहीं है, जस्ट आपको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसको लेकर कैसे आना है। तो इस तरह से आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना लेंगे। फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं होती तो यही वाला चैप्टर आप दोबारा पढ़ सकते हैं, आपको हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर मिलेगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसे नौकरी करना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिखें। मैं ना आई शेयर वन माई एक्सपीरियंस। मैं आई एम इनटू बिजनेस, तो बहुत ज्यादा ना थोड़े टाइम पहले बहुत इतना सब मैसी था ना, मुझे लगता था ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, और करते करते वो पूरा दिन कहाँ जाता था। एंड एट दी एंड ऑफ द डे लगता था क्या किया, मतलब छोटे छोटे कामों में इतनी ज्यादा एनर्जी चली गई कि बड़े बड़े काम तो किए नहीं जहाँ से बहुत सारे पैसे जनरेट हो सकते थे। सारी जो मेरी एनर्जी छोटे छोटे कामों में और उनको कर्स करने में निकल जाती थी। एंड जैसे फिर मैंने अपना ड्रीम सेट किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े आराम से बैठूं, बहुत आराम से काम करूं, जरूरी नहीं है कि मैं ऑफिस से ही काम करूं, जहां भी मैं बड़े आराम से अपने बिजनेस को एक्सेस कर रही हूँ।
एंड जैसे वो सेट कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू नो लवली पीपल केम इन एंड जॉइंड अस, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया हमारी कंपनी को, एंड टुडे आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। अब तो काम करने में इतना ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो सारे छोटे छोटे काम डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिनको मैं सिर्फ कर्स करती रहती थी, कर्स करती थी, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ, एंड धीरे धीरे थिंग्स यू नो चेंज। एंड वो अब इतना मजा आता है, कॉफी पियो, पीते पीते काम करो, मजे से काम करो, एंजॉय करो। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये आपने चाहना नहीं लिखना है, जब भी ड्रीम लिखना है आपको लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल कि ये ऐसा है, मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ कि ऐसा है, उसको प्रेजेंट में लिखना है। एंड आई वॉन्ट नहीं लिखना कि मैं चाहती हूँ। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, यानी कि जिस तरह, ये नहीं कि सिर्फ मेरे को पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, कौन से कॉलेज में उसका एडमिशन कराना है या स्कूल में कराना है, कितना पैसा स्पेसिफिकली आपको 50,000 चाहिए या 50 लाख चाहिए या 50 करोड़ चाहिए, जितना पैसा चाहिए वहां पर मेंशन करना है, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो ये वो पॉइंट है जहां हमें पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या, हम बोलते हैं पैसा चाहिए, खुशी चाहिए। अरे खुशी का मतलब क्या है? मेरे लिए खुशी का मतलब है कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, मेरे लिए ये खुशी है, मे बी आपके लिए वो खुशी डिफरेंट हो सकती है। तो उसको मुझे प्रिसाइजली लिखना होगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने 90% मार्क्स स्कोर किए अपनी क्लास में। एंड डोंट वरी, अगर आज आप ये नहीं भी करते हैं तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिसेस बाकी करेंगे ना, आपको लिखना भी आ जाएगा। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना वो करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। मे भी किसी का कोई ड्रीम हॉलीडे है, अभी तो चलो कोविड की वजह से नहीं है, बट आप ये भी ड्रीम अपना लिख सकते हैं कि आपको मे बी हॉलीडे के लिए यूरोप जाना है, कौन कौन सी कंट्री जाना है, किस आपको एयरलाइन से ट्रैवल करना है, कैसा होटल होना चाहिए जहां आपको ठहरना है, यू नो वो सब चीजें बहुत प्रिसाइजली लिख सकते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। तो प्लीज डोंट राइट आई वांट बेटर रिलेशनशिप, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं। किससे रिलेशनशिप अच्छे चाहिए आपको? हस्बैंड से चाहिए, वाइफ से चाहिए, मम्मी डैडी से चाहिए, बच्चों से चाहिए, ब्रदर से, सिस्टर से, एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किससे रिलेशन अच्छे चाहिए? प्लीज मेंशन दैट। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीकों से अपने स्वास्थ्य या और शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो प्लीज जिसको कोई फिजिकली कोई हेल्थ इशू है, डोंट राइट कि आई डोंट वांट दिस पेन टू बी इन माय बॉडी, नहीं लिखना कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आपको लिखना है कि उस तकलीफ के जाने के बाद आपको कैसी बॉडी होगी, उसके बारे में लिखना। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं। आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। कार भी चाहिए तो कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, इंटीरियर कैसी होनी चाहिए। तो सोचने में भी आपको, जैसे अभी एक आर्किटेक्ट जब कोई हम जाते हैं ना उसके पास अपने प्लॉट का साइज लेके, तो वो पूरा इंच टू इंच हमें बनाकर देता है, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन, यहाँ बैल्कनी, यहाँ आपका गार्डन होगा। और वो जब घर बनता है ना तो उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर बनता है। तो सिमिलरली आज हम अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे। अगर मुझे सपनों की कार चाहिए ना, मान लो मुझे ऑडी चाहिए, तो आज ही मैं ब्लूप्रिंट बना लूंगी, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कहाँ से खरीदनी है, कितने पैसे उसके लिए चाहिए, वो सब ब्लूप्रिंट मेरे माइंड में तैयार होनी चाहिए। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें या यथासंभव निश्चिंत रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने के समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें।
आप जो चीज चाहते हैं उनकी सूची बनाने के लिए एक आसान तरीका, उन्हें श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो ये आपकी ड्रीम लिस्ट है ना, ये आप देखना कितनी जल्दी आप इसमें ना जो भी ड्रीम लिखोगे, धीरे धीरे नए ड्रीम्स भी ऐड होते जाएंगे और पुराने कटते भी जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि अरे ये ड्रीम भी पूरा हो गया। और नहीं समझ में आ रहा है तो उनको कैटेगरी बना लें कि क्या मुझे हेल्थ और बॉडी चाहिए, कैरियर और कामकाज चाहिए, धन चाहिए, संबंध रिलेशनशिप चाहिए, कोई मेरी पर्सनल इच्छाएं हैं, भौतिक वस्तुएं यानी कि कार या घर या कोई कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको खरीदना है, या फिर हर श्रेणी में आपकी मनचाही चीज दिखे। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड कल से फिर हम अपनी डे वाइज प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। दिस इज फॉर टुडे। आज हम इंट्रोडक्शन कर लिया हमने इस बुक की। अब प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है कि अपनी ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, अपने सपनों को कैसे लिखना है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। यस युवराज। Good morning, ma'am. युवराज यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। Good आप morning. म्यूट हैं। युवराज आप म्यूट हैं। उससे पहले मैं एक बार एक मृदुल जी से बात कर लेती हूँ, एक सेकेंड। यस मृदुल जी। Hello. morning. Good morning. Good morning. यस मृदुल जी, गुड मॉर्निंग। First, I wish you very, very happy birthday. थैंक यू सो मच। It's मैंने लिखा था ये कि I think आज कुछ खास दिन होगा. Then I search. I have a clue. Then I so it's a very glad for me. And आपकी क्लास के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टेड थी कि ज्वाइन हो। मेरे तो बहुत मतलब 3-4 ईयर से आई एम इन मतलब स्काई। मेरी डॉटर ने भी आज से ज्वाइन किया। आई थिंक 2-3 फ्रेंड्स आर आल्सो विद हर ज्वाइन आल्सो। सो थैंक यू। अभी मैं सो मच फर्दर जर्नी के बारे में नहीं बताऊंगी, तो नेक्स्ट आई विल कम टू यू। थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल कि ये सब आज हम सब लोग, कुछ नए लोग कुछ पुराने लोग फिर से मिले हैं। एंड आज का ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है, यू नो पूरे लाइफ टाइम का आज सबसे बड़ा गिफ्ट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। रियली में आप वैसे भी हमारे लिए बहुत मायना रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस युवराज जी। हैप्पी बर्थडे दीपांजलि। थैंक यू सो मच। थैंक यू। युवराज नहीं, स्तेंदर। युवराज मेरे बेटे का वो है, एक्चुअली वो फीड हो रखा है युवराज के नाम से। ओके व्हाट्स योर नेम? स्तेंदर कौशिक जी बताएं स्तेंदर जी। दीपांजलि, ये ना मेरे पास बुक्स काफी पुरानी है, लेकिन ये बुक्स उससे मैच नहीं कर रही है जो आप रीड कर रहे थे आज। दिखाएं कौन सी बुक है? सीक्रेट बुक हो गया। हाँ ये अलग बुक है। इसके सीक्रेट ये अलग बुक है ना? आप ये बताओ, आपकी कोई फेवरेट डिश बताओ, क्या है आपको खाने में, क्या सबसे पसंद क्या है सबसे ज्यादा? नॉन वेज वेज? एनी। चिकन, बटर चिकन। तो जो आपके पास बुक है ना वो बटर चिकन है। अब आपको बटर चिकन खाने के लिए हर बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब नाउ जो ये बुक हम करने जा रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी रेसिपी बताने वाली है बटर चिकन की, जो आप बाहर खाते हो ना उससे भी अच्छा आप घर पे बनाते हो। तो दिस इज द रेसिपी। राइट। जो आपके पास है वो नॉलेज है, उस नॉलेज का जो खजाना है उसको खोलना कैसे, तो ये बुक करवाएगी। सेम ऑथर ने ये बुक लिखी है। जी राइट। एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीपांजलि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू नो यू। एंड आज के जो भी हमने अपने आज के ना हमारे 2 होमवर्क हैं। आपके पास जो अभी बुक है उसी से रिलेटेड मैं बता दूं, एक सीक्रेट मूवी भी है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आज का आपका ये होमवर्क है, मेरी साइड से ये होमवर्क है टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस बुक। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप उसको करिएगा जरूर। वो मूवी आपने देखनी है, 90 मिनट्स की वो मूवी है यूट्यूब पर। मैं अभी हम लोग शेयर कर देंगे लिंक। चाहे हिंदी में देख लें चाहे हिंदी में, बट प्रॉमिस मी कि वो आपको जो मूवी है वो बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना डिस्टर्बेंस के देखिए। मतलब 90 मिनट अपने सपनों के लिए निकालना कुछ भी नहीं है एक दिन में, कुछ भी नहीं। मैंने तो पता नहीं कितनी बार देख ली। मैं मूवीज नहीं देखती हूँ, बट जब भी टाइम मिलता है मैं ये मूवी को जरूर देखती हूँ। और अब तो मतलब जब आप कल देख कर आएंगे तो वी कैन बी ए लाइक माइंडेड,
डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, बट प्लीज देखिएगा वो मूवी, बिना डिस्ट्रैक्शन के देखनी है तो ही आपको फ्रूट्स मिलने वाले। डिस्ट्रैक्ट मत करो, अपने फोन को साइड पे रख दो, या फोन पे ही देख रहे हो तो वाईफाई पे करके और एयरप्लेन मोड पे कर दो, एंड यू हैव टू मैनेज इट। वो आपको मूवी देखनी है, दैट इज फर्स्ट होमवर्क। द सेकंड होमवर्क इज जो मैंने आपको आज आपकी ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए बोला, क्योंकि हम जा रहे हैं रास्ते पे, हमें अपने ड्रीम पूरे करने हैं, बट पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो विल बी लॉस्ट, फिर ये बुक करने का फायदा नहीं। तो सेट योर ड्रीम, आपको घर लेना है, कैसा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई जॉब अट्रैक्ट करनी है, लाइफ पार्टनर चाहिए, या कोई रिलेशनशिप जो बहुत गई से गई हालत में भी है, उसके बारे में भी, जहां होप ही नहीं लग रही है आपको, वो रिलेशनशिप को भी हम इतना मैजिकल बना सकते हैं। एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ कि ये मुझे चाहिए, डोंट वरी, वो सब चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती है। एयरप्लेन भी बनाना तो वो किसी ने सोचा होगा पहले कि ऐसा जहाज होगा, उसमें लोग बैठेंगे, वो उनको लेकर जाएगा, जबकि हम क्या कहते हैं, हैवी चीजें तो उड़ती ही नहीं है, बट आया वो मैकेनिज्म, वो साइंस आई कि जहाज भी उड़ने लग गया। तो डोंट वरी एंड डोंट हेजिटेट। जब आप लिखोगे ना अपने ड्रीम, घबराओ ही नहीं, दिल खोल के मांगो, तभी दिल खोल के देगा भी भगवान। यही मांगने में कंजूसी करोगे तो मिलने में तो कंजूसी होनी है। तो डोंट वरी, सेट योर ड्रीम्स टुडे एंड विल सी यू टुमारो। कल से हम चैप्टर करेंगे, आज थोड़ा ओवर टाइम हो गया, इट्स 7:24, बट कल जब हम करेंगे तो हार्डली टेक 40-45 मिनट। एंड एनी क्वेश्चन यू हैव, मेरी एक प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, don't text me, don't call me, because I also have my own commitments, मेरी family है, business है, I may not reply you, तो उस time you may feel bad कि call किया उठाया नहीं, message किया जवाब नहीं दिया। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जितने चाहें मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड बिलीव यू मी, ये जर्नी आपकी इतनी मैजिकल होने वाली है, मैंने अपनी पूरी लाइफ को ऐसे ही चेंज किया, एंड हम सब लोग कर सकते हैं। एंड एक छोटी सी बस ग्रेटिट्यूड वाला धागा है, उसको पकड़ के हम लोगों ने जाना है। ऑलराइट, so anyone have any question, please ask, don't hesitate। किसी को कैसा भी कोई question है, ma'am. Hello yes ma'am, please, happy birthday to you ma'am। thank you so much। आपको पूछना है कुछ? जी नहीं मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और आई थिंक मैं थोड़ा चेंज भी लग रहा है कि अच्छा है, शायद दिन की शुरुआत अच्छी है। वंडरफुल, दिन की नहीं, जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है पूजा। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। So any question? Good morning, ma'am. Meenakshi here. Good morning Meenakshi, how are you? First of all, wish you a very, very happy birthday. Thank you And so thank you much, once again thank for you so starting much, this session. thank you so much, thank you। एंड डोंट वरी, जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया उनको लग रहा हो कि बुक का इंट्रोडक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे करेंगे, डोंट वरी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक एक चैप्टर करें, एक दिन का एक चैप्टर इज नथिंग। स्कूल में भी कभी ऐसे नहीं पढ़ते थे, स्कूल में भी इतना सारा काम कर लेते थे एक दिन में, अब तो ये बहुत सिंपल होने वाला है। ऑलराइट, so thank you so much। birthday, yes, Dr. Aruna here। yes Miss Aruna, Happy birthday to you। thank you so much, thank Bless you, you। thank you so much, and thank you Deepika for reading for us in Hindi, and you really Yes. struggled hard। And happy birthday, Dipanjali. Thank you I'll so call much, you. thank you everyone। Thank you so much, yeah, all right, have a good day, have a magical day, You see you too. tomorrow at 5:50 or 6। Thank you so Thank you, much, bye, Dipanjali. have a magical Thank day। you. This Thank is you, such a thank you, beautiful, thank you. beautiful journey we have again started, and I am always been longing for this. Thank you so much, and hello to everybody. Nice to meet all. Bye. Hello।